Hello friends, so I am back with my new lecture, that is the food security and malnutrition in India, challenges and solutions associated with it. As I already told you in the last lecture that I will be covering the food security part in my next lecture in the series of the lectures which are related with the agriculture and agriculture related issues, and that is you already know that it is a very essential part of our IAS civil services main syllabus and very fruitful for your essay also. So if any agriculture related or any food security related topic comes in your exam, so you can use the facts and the figures which I explain you during my lecture. So this lecture is very beneficial as far as your IAS exam point of view, mains point of view, GS part 3, that is the paper 3, and for your essay. So I'll be starting this lecture now. So I'll be covering what do you mean by food security. So what do you mean by food security? As described here, that all people at all times have physical, social and economic access to sufficient, safe and nutritious food that meets their food needs or food preferences and dietary needs for an active and healthy life. So what is food security? It means that you should feel secure as far as your food needs are concerned. So you not only get a diet which actually fills your stomach and provides you the necessary energy, but it also includes to have access to the nutritious and the healthy food, which is a balanced food in which there are a sufficient amount of proteins, minerals, vitamins and other micronutrients. So to have access to that kind of food and availability of that food which ensures a active and healthy life is food security. So this food security is not only getting the access to the rice and wheat, but also to get the food which is balanced in terms of availability of micronutrients in that food, in the diet. So this is food security. Now it has as you can see, it has three important and closely related elements. So there are food security is the combination of three elements, which is, so it is not three elements, actually it is four elements here. So it has four elements, that is affordability of food, availability of food, stability and utilization. So actually there are four elements of food security which should be ensured, then only we can say that the food access or the security of food is available. So what are those components? The first component is the availability of food. So what do you mean by availability? That the food must be available to the person who wants to eat the food, who wants to take the food. It must be available to the person. So it should not be like it will be available in small quantity. It should be available in that at most that quantity, at least that quantity that is required to meet the person's needs, the food needs. So at least it must be available in sufficient quantity, and it also the availability also not the stability, actually it also includes the stability part also, that it must be available, plus it also includes that if the food is not available in an area, then the food must be supplied in that area, or you can say in the food deficit area the food must be supplied from the food excess area. Where it is in excess, supply is in excess, so the food must be transported from the area where the food is in excess to the area where it is in deficit. So that is actually the food availability. What do you mean by the access to food? So access means that people
must be able to buy the food, or to have they have access to the food. So how they have access to food? I think that means they have the sufficient purchasing power, okay, to they to buy the food, or the food is available to them in subsidized or discounted prices, as through PDS system, through the FCI godowns. The food is transported to the fair price shops, that is FPS, and from FPS it is given to the final common user who is poor. So the food must be accessed by the persons based on their purchasing power. So the food must be accessed, it will be available, and it must, even if it is available, it is possible that the person may not have the access to the food. So the food must be accessed by the person who wants to consume the food. Next, the stability. So stability means that the person has the ability to access and utilize food that remains stable or consistent basis. That means the food must be available, plus it must not only that it must be available, but it also should be available constantly the entire time, the entire year. It must be constantly available. ऐसा नहीं है कि आज ही available हो and next time it is not available. It should be available on a consistent basis. That is the stability of the food security component. So no risk of loss of supply. So it should, if any losses of supply is there, so that will can be said that the food security is hampered. So there should be no risk of no risk of loss of supply of the food. Next, the utilization of food. So utilization, that the persons should have the knowledge and basic sanitary conditions. Persons must be knowing about the nutritional impact of the food. They must be knowing what benefit the food is going to give to them by consuming that amount of food. For example, आप कह सकते हैं स्नैक्स हैं या फिर कोई फास्ट फूड है. फास्ट फूड बेनिफिशियल नहीं, तो ये नहीं कि आपने फास्ट फूड दे दिया किसी को. द food that should be available, that should be nutritious, and the person who is consuming that food should have the knowledge that what benefit the person will get after consuming the food. So the utilization also includes the hygiene practices, the sanitary conditions, the health, the water sanitation practices, and the conditions. So what does it mean? It means that the person should have the knowledge and should have the right hygiene practices, should have the right health, should have the proper water, drinking water, should have the proper sanitation, also including the availability, access and stability of food. तो यूटिलाइज आप तभी करोगे ना जब साफ सफाई होगी, एनवायरमेंटल कंडीशन बेटर होंगी, ओके, सैनिटरी कंडीशंस होंगी बेटर. गंदगी में मक्खी मच्छरों में तो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते फूड. तो द बेसिक सैनिटरी कंडीशन शुड बी कंड्यूसिव टू द पर्सन हु इज ईटिंग द फूड. So that is the utilization of food. So this is about the food security. So you must also note that it is also related to the food security is also related to your income, your status, the resources available at your disposal, also the price of food in the market, the growth of agriculture, the condition of the environment, and many more such factors. But primarily these for availability, access, stability and utilization of food should be should be noted down while we are talking about the food security. So this is all about food security, the definition of food security. Now what are the challenges? So we will directly jump to the challenges because that is the important part. That what are the challenges which are associated with the food security. Now the food security means
means we will understand the conditions due to which the food security is hampered or food insecurity takes place. So what are the challenges? That first is the shortage of food. Food may be short, it is in short supply. So you can read out that biggest challenge to ensure the food security, that is to supply of food shortage. In the past India experiences the food shortage. आप जानते हैं बंगाल फेमाइन हुआ था 1907-1908 में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड. सो धीरे धीरे हमारे देश में फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी तो एटलीस्ट इंश्योर होने लगी. और इसकी ऐसा नहीं है कि फूड अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो गई इसी वजह से लोग भूखे मर गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है आजकल देश में, क्योंकि फूड अवेलेबिलिटी एटलीस्ट एक प्रॉपर क्वांटिटी में है. तो बट फूड शॉर्टेज जो है एक बेसिक कहा जाता है कि द शॉर्टेज ऑफ फूड लेट्स टू दी फूड इनसिक्योरिटी. तो दैट इज़ वाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पॉइंट. फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. मैंने आपको बोला कि फूड सिक्योरिटी केवल यही नहीं है कि आपने दाल चावल खा लिए, दाल चावल कह रहा हूँ, चावल और गेहूँ खा लिया, बट फूड सिक्योरिटी ये भी है कि आपने उसमें न्यूट्रिशियस खाना खाया नहीं खाया, बैलेंस डाइट खाई नहीं खाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें है या नहीं है फूड में, ये भी बहुत ज़रूरी है. तो कहा यह जाता है कि फूड सिक्योरिटी तो हमारे देश में हो गई, अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं. तो दिस इज़ द, कहने को ये फूड सिक्योरिटी में ही आता है, बट इट इज़ ऑल्सो अ मेजर चैलेंज कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी गवर्नमेंट एजेंडा में है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी है, गवर्नमेंट को इंश्योर करना है देश में, जो कि नहीं है. द कंट्री नीड्स टू मूव स्विफ्टली टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी टू अ लार्ज मास ऑफ पीपल. While around 80 crores people are provided by calories through National Food Security Act, you already know, the focus should now shift to production and consumption of pulses, oilseeds, vegetables and other commodities such as fish and eggs. तो बेसिकली ये जो commodities की हम बात कर रहे हैं ये इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को एटलीस्ट न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें. हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक इन डिटेल. मैं थोड़ा सा भी रशअप करूँगा क्योंकि ये काफ़ी सिंपल है तो बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है. देन द नेक्स्ट इज़ द लैक ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी. अगेन अ पार्ट ऑफ न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, दैट वन ऑफ द ऑब्वियस एंड प्राइमरी रीजंस फॉर अंडर नूरिशमेंट इज़ अ लैक ऑफ डाइटरी डाइवर्सिटी. वो होना चाहिए जो कि मैं बात कर रहा हूँ कि पल्सेस होने चाहिए, ऑयल सीड्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, एग्स होने चाहिए. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट इंडिया लूजेज ओवर $12 billion US एनुअली इन GDP फ्रॉम विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी. ये जस्ट एक फैक्ट है, आप इसको याद रखिए ताकि आप इसको कोट कर पाएँ किसी भी एग्जाम के अंदर. Challenges associated with food security continued. Then what are the other challenges? Low agricultural productivity. तो ये भी एक चैलेंज है हमारे देश में कि ये एक बेसिक मेजर चैलेंज ये भी है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चरल की बहुत कम है. इज एक्सट्रीमली लो. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक फिगर्स, सीरियल ईल्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी यहाँ पे 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, जबकि नॉर्थ अमेरिका में 7318.4 किलोग्राम पर हेक्टेयर है. तो फूड प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें देश को समृद्ध बनाना है, देश के 135 करोड़ लोगों को बैलेंस डाइट देनी है, तो हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. ऑब्वियसली सीरियल प्रोडक्टिविटी तो बहुत है हमारे देश में, बट ये जो पल्सिस प्रोडक्टिविटी है या फिर जो और फूड की जैसे हमने बात की, पल्सिस की, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, इसकी प्रोडक्शन कंपेयर टू दी सीरियल्स काफ़ी कम है. तो इनकी हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी. वो तभी बढ़ाई जा सकती है जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, तो उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है. और आप मेरे लास्ट लेक्चर्स में देखेंगे तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी कुछ बातें भी की हैं. आप लास्ट लेक्चर में जाएं और मेरे इस लेक्चर को देखें. देन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो कि ICDS स्कीम है, दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव. ए लॉट ऑफ आंगनवाड़ीज डू नॉट हैव वेइंग मशीन्स नहीं है उनके पास. तो अगर आपको मालूम ही है ICDS के बारे में कि इसके तहत जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं और जो इन्फेंट्स हैं उनको जो खाना दिया जाएगा, आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं वो देते हैं खाना लैक्टेटिंग मदर्स को, जो ICDS के प्रोविज़न के अंदर में आता है, उनके पास वेइंग मशीन्स ही नहीं है. वो कैसे वेइंग मशीन नहीं होगा तो वो कैसे पता लगाएंगे कि भाई ये फला बच्चा जो है ये अंडरवेट है या नहीं है, जो कि एक बेसिक कंपोनेंट है किसी भी माल नूरिशमेंट के मेजर को
को मेजर करने के लिए, तो दे डोंट हैव वेइंग मशीन्स। लैकिंग इज़ मॉनिटरिंग ऑफ टारगेट्स, ये लैक कर रहा है, मॉनिटरिंग नहीं होती टारगेट्स की, डिलीवरी ऑफ स्कीम्स टू बेनिफिशरीज, ये लैक करता है। ICDS में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ICDS के बारे में हम किसी और कभी लेक्चर में बात करेंगे, बट जो ICDS स्कीम है जिसमें मदर्स को और चिल्ड्रन को बात की गई है, लैक्टेटिंग मदर्स को, केवल मदर्स सबकी नहीं, और बच्चों की बात की गई है ताकि उनको एक बैलेंस डाइट मिले, उसकी बात की गई है। तो वो काफ़ी कुछ उसमें लूप होल्स हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इशू ऑफ आयरन इनटेक इज़ अ प्रेसिंग इशू, यू ऑलरेडी नो। आयरन इनटेक जो कि एनीमिया को कॉज करता है, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे फूड सिक्योरिटी में। पुअर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बहुत बड़ा इशू है। करेंटली आवर प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू ऑलरेडी नो, द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ एग्जिस्टिंग इन दी विलेजेस एंड दी स्मॉल टाउन्स, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जिनको बोलते हैं, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, जहाँ पे लोगों का एक जो इलाज होता है, दोज हु आर एग्जिस्टिंग इन विलेजेस। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत वीक हैं हमारे देश में। वेरियस डिफरेंट पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, देयर आर रेंज ऑफ इन्फेक्शंस विच exacerbate द चाइल्ड मेल नूरिशमेंट कंडीशन इन द कंट्री। इनकी वजह से भी exacerbate होता है द मेल नूरिशमेंट प्रॉब्लम ऑफ द चिल्ड्रन। पैरासिटिक इन्फेक्शन, दैट इज़ worms। नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम टू बी एक्सटेंडेड टू द कम्युनिटी लेवल। सो नेशनल डीवर्मिंग प्रोग्राम जो हमारी गवर्नमेंट लेकर आई हुई है, उसको कम्युनिटी लेवल पे भी लेकर जाना पड़ेगा। कम्युनिटी मतलब विलेजेस में लेकर जाना पड़ेगा। चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग ट्रीटमेंट, उनके पास ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता चिल्ड्रन को, लाइक मीजल्स, डायरिया, निमोनिया, मलेरिया के लिए ही ट्रीटमेंट नहीं है। रोटावायरस इंट्रोड्यूस्ड इन दी सिस्टम ओनली 2 years ago। रोटावायरस की जो वैक्सीन है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन दी सिस्टम ओनली 2 years ago। टू टैकल द डिसीजेज, should be there। So to tackle the diseases, what should be there? The primary health infrastructure is to be focused upon. Take the medical services to the doorstep. UP and Bihar Japanese encephalitis and acute encephalitis symptoms have to do with child undernourishment burden। तो क्या होता है कि ये सब पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसी वजह से जो खाना चिल्ड्रन खाते हैं वो उसको असर नहीं करता है, उसकी वजह से वो वीक रह जाते हैं और वो मेल न्यूरिश्ड रह जाते हैं। तो ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस को हटाने की हमारे देश में बहुत ज़रूरत है, तभी हम फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। देन देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन दैट इंक्लूड कैलोरिक डेफिशिएंसी, की कैलोरीज ही नहीं है आपकी बॉडी में, प्रोटीन हंगर प्रोटीन नहीं है आपकी बॉडी में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। ठीक है, ये दीज आर 3 डायमेंशंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन। हम इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करेंगे। What are the other challenges? Inadequate resources in rural areas. In rural areas, food insecurity is mainly prevalent due to lack of improvement in agricultural productivity, जिसकी हमने बात की, owing to inadequate resources and agriculturally unstable markets। तो resources की कमी है रूरल एरियाज़ में। The 3 components involved in making any scheme or a plan, जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम लाती है, जो भी प्लान इंट्रोड्यूस करती है, वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है if adequate planning is done, execution of the scheme is done, and supervision भी होना चाहिए, प्लस द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग, और लोगों को पता होना चाहिए उस स्कीम के बारे में। तो क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पाती रूरल एरियाज़ में। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिक्रीज द एक्सपेंडिचर फॉर रूरल डेवलपमेंट इन द कंट्रीज NNP, दैट इज़ द नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट, फ्रॉम 3.8 to 2.3%। तो जो रूरल डेवलपमेंट में जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही थी 2004-05 में, वो से पहले वो 3.8 से 2.3 हो गया। दिस एडवर्सली इफेक्टेड द अवेलेबिलिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़। इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ का एक्सपेंशन करने में दिक्कत आई, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में दिक्कत आई, और फूड ग्रेन आउटपुट इससे हैम्पर हुआ। तो डेफिनेटली हमें अगर इंश्योर करना है कि प्रोटीन हंगर, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कैलोरिक डेफिशिएंसी अगर रिमूव हो, वो तभी हो सकती है जब हम एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इंक्रीज़ करे, जो कि रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट करती है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज है फर्दर फ्यूल्ड द प्रॉब्लम्स विच ऑल इंटीग्रेट टू फॉर्म्स फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है ना, एजुकेशन नहीं है, ऑब्वियसली एजुकेशन नहीं होगी तो अवेयरनेस की प्रॉब्लम होती है,
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो माइग्रेशन हो जाता है, तो पैसे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जॉब नहीं है उनके पास, इस वजह से वो फूड इनसिक्योर रह जाते हैं। प्रॉब्लम इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अर्बन एरियाज़ में क्या प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन अर्बन एरिया रिजल्ट्स इन एन अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ स्लम्स। अब क्योंकि फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम अर्बन में एरियाज़ में है, इसकी वजह से अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ स्लम्स हो गया, विच लाइक बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन फैसिलिटीज़ एंड सफ़र फ्रॉम इंक्रीज फूड इनसिक्योरिटी। तो बेसिकली क्या है ना, स्लम्स का क्योंकि वहाँ पे आ गए, क्योंकि उनके पास बेसिक पैसा नहीं है, इस वजह से स्लम्स में रहने पे मजबूर हुए, तो वहाँ पे वो फूड सिक्योरिटी से सफ़र हो गए। Most of the insecure people are in urban areas are from the informal sector, as you already know, where they receive their daily employment wages, which tends to be variable on different dates. Obviously, तो उनको wages ही नहीं मिलती properly. Due to the fluctuation in their daily wages during some days, they are hardly able to consume 2 proper square meals. तो खाना ही नहीं मिलता उनको, पैसा नहीं कमा पाते। तो ये एक रूरल में भी प्रॉब्लम है और अर्बन में भी, एटलीस्ट स्लम एरिया में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, Our country is home to over 1/3 of the world's stunted, chronically malnourished children. Stunted मतलब जिसकी ग्रोथ कम होती है, गिट्टे रह जाते हैं, वेट कम रह जाता है, तो दैट इज़ बेसिकली दी स्टंटिंग। ठीक है, तो स्टंटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। ओवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड स्टंटिंग इज़ फाउंड इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू शुड रिमेंबर इट। 62 million children, that is 6 crore children under the age of 5 in India are stunted. Progress can definitely be observed. However, India still lags behind many. Progress जरूर है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स लेकर आई है, ICDS लेकर आई है, पोषण अभियान लेकर आई है, मिड डे मील है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है, बट कितना है हम बात करेंगे अभी आगे वाली स्लाइड में। डेफिनेटली है, बट स्टिल लैग्स बिहाइंड मैनी पुअरर कंट्रीज। इफ प्रोग्रेस कंटिन्यूज एट दिस रेट, India will achieve the current stunting rate of Ghana only by 2030 and that of China by 2055। इसका मतलब ये है कि अगर इसी स्पीड से स्टंटिंग को इम्प्रूवमेंट किया गया, यानी ख़त्म किया गया, अगर यही स्पीड चलती रही तो हम 2055 तक चाइना के बराबर पहुँचेंगे, जो चाइना की आज के टाइम पे है। तो सच इज़ द स्टेट ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कीम्स विच गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड। उसके अलावा अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, जो कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, दैट इफेक्ट्स अबाउट 60% ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री। It has also remained the top cause of disability in India for 10 years now. Anemia can considerably reduce the work capacity of individuals and entire populations and bring serious economic consequences and obstacles to national development. It also caused 20% of maternal deaths in India and was the associate cause in 50% of maternal deaths in 2014. The leading cause of anemia in India again come down to poverty and poor sanitation. तो आप समझ लीजिए अनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए गवर्नमेंट ने आयरन इनटेक डेफिशिएंसी स्कीम भी लॉन्च की, ताकि आयरन इनटेक बढ़ाया जाए जो लेडीज़ हैं उनके अंदर, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, लैक्टेटिंग मदर्स के अंदर और प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर। बट स्टिल अनीमिया जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रेसिंग इशू इन इंडिया, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं। नेक्स्ट, these are some other causes of the challenges which are associated with food security, that is the climate change. So high temperatures and unreliable rainfall makes farming difficult. Climate change not only impacts crop but also livestock, forestry, fisheries, aquaculture, and can cause grave social and economic consequences in the form of reduced incomes, eroded livelihoods, trade disruption, and adverse health impacts. Obviously climate change की वजह से बहुत इश्यूज़ हैं। आप देखते हैं कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सूखा आ जाता है, इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी मेजरली इम्पैक्ट होती है हमारे देश में। देन लैक ऑफ एक्सेस टू रिमोट एरियाज़, ऑब्वियसली रिमोट एरियाज़ में एक्सेस नहीं है। किसका एक्सेस नहीं है? ऑफ टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, ऑफ द टूल्स एंड ऑफ द इम्प्लीमेंट्स जिनसे खेती बाड़ी होती है, उसका एक्सेस वहाँ पे नहीं है। नॉलेज का एक्सेस नहीं है। सो हैबिटेशन प्रॉपर नहीं है, डिमांड वहाँ पे कम है। So for the tribal communities, habitation in remote difficult terrains and practice of subsistence farming has led to significant economic backwardness. Okay, roads नहीं है जैसे tribal areas जो कि remote areas हैं। So increase in rural to urban migration, ये मैंने आपको वैसे ही बताया
क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो रूरल से निकल गए, तो वहाँ इनसिक्योरिटी हो गई, फूड इनसिक्योरिटी. So lack large proportion of informal workforce resulting in unplanned growth of slums which lack in the basic health and hygiene facilities, insufficient housing and increased food insecurity. रूरल में भी है और अर्बन में भी है. Unmonitored programs जो मैंने बात की, lack of coherent food and nutrition policies, okay, along with the absence of intersectoral coordination. जो intersectoral coordination है वो that is lacking in between various ministries. Corruption is there. Diverting the grains to open market to get जो FCI शॉप से जो फेयर प्राइस शॉप से डाइवर्ट हो जाता है ग्रेन फूड ओपन मार्केट में, दैट इज़ ऑल्सो ए मेजर इशू that leads to the issue of food insecurity. Then other issues, India faces supply constraint, सप्लाई का इशू है, वाटर स्कैसिटी है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, लो पर कैपिटल GDP है, and inadequate irrigation with burgeoning population. That are some of the issues which leads to food insecurity in India. So ये बहुत ही अंडरस्टूड टॉपिक्स हैं, इनको आप पढ़ें और याद रखें ताकि आप एग्ज़ाम में इनको लिख पाएँ. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हो गया आपके चैलेंज. Now we will study the various food security indicators and reports which are very important for your prelims point of view. So there are various indexes and various reports published by the government of India and the world institutions which are related who are associated with the publishing of the reports related to food security and the availability of food in various countries. So first of all, it is the Global Hunger Index. As you already know, the index which actually measures the number of people who are suffering from hunger and malnutrition in a country. So in this index, India is said to be suffer from serious hunger, and it ranked 102 out of 117 countries. That is the latest ranking of 2019. So as you know that it is a very bad rank. So the lowest is the rank, the lowest is the food security, and the grave is the problem of the hunger in the country. So in this report or in this index, India, you can imagine, it is even fares worse than the its various neighbors like Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, and even Afghanistan. Not Afghanistan but Bangladesh. So such is the state of the malnutrition in the country and of the food security. Now according to Global Nutrition Report 2020, India will miss targets for all 4 nutritional indicators for which there is data available. So according to this report, Global Nutrition Report 2020, India will miss targets of stunting among under 5 years of age children, anemia. So stunting I have already explained, the loss of height and the loss of the body stunting the body capacity, the height, as well as you understand the health of the body, or you can say the well-being of the body. Stunting mainly is related to the height. The anemia among women of reproductive age, anemia is a very pressing issue in India among the pregnant women and the lactating mothers also. The childhood overweight, the overweight of the children, and exclusive breastfeeding. And exclusive breastfeeding means the child is only given breastfeeding, no external like milk or any type of food product is being provided to the child or to the infant to provide to fulfill the nutrition which is lacking in the child. So breastfeeding cannot compensate the external food, that is the milk, external cows and or buffalo's milk, or the external food products. So exclusive breastfeeding definitely leads to less this
deficiency, various types of deficiencies in the children. So in these are the various deficiencies and various issues related to malnutrition which India is currently facing. Also, India is identified as among the 3 worst countries, okay, 3 worst countries along with Nigeria and Indonesia for steep within countries disparities in stunting, where the levels varied fourfold across communities. So just 1 minute. So as you can see, so there are various wide disparities, or you can say inequity, which is the next point. So there are wide disparities in stunting and even undernutrition and overweight, obesity and other diet related chronic issues. So inequity is a major cause of malnutrition. So what is this inequity? So what does it mean? It means that the inequity or the difference between the people based on the age, based on their gender, यानी कि मैन और वुमेन के बीच में उनके एज का डिफरेंस है, एथनिसिटी, देन देयर on the basis of their geographical location. So बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ हैं हमारे देश में, बेस्ड ऑन दी विद इन कंट्री डिस्पैरिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में एक बहुत बड़ा कॉज है इनिक्विटी, विच इज़ अ मेजर कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन. यानी कि आप समझ लीजिए कि किसी दिल्ली या मेजर एनसीआर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेल न्यूट्रिश लोग कम है, बट अगर आप उड़ीसा जाएंगे, वेस्ट बंगाल जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे. तो बेस्ड ऑन जोग्राफिकल लोकेशन, बेस्ड ऑन दी एज जैसे जो बच्चे हैं उनको वो बहुत ज़्यादा माल न्यूरिश्ड हैं, छोटे बच्चे. बड़े लोगों में कम है माल नूरिशमेंट. सिमिलरली जेंडर, बॉयज़ को कम है, गर्ल्स को ज़्यादा है. और गर्ल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज जो मैंने ऊपर बात की अभी. एथनिसिटी, ऑब्वियसली एथनिसिटी जैसे आपका ईस्टर्न स्टेट्स में डिफरेंट एथनिक पीपल जैसे रहते हैं, जिनकी डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ हैं. तो उसमें एथनिसिटी में आप ये भी मान सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में ज़्यादा मालनूरिश्ड लोग हैं और किसी में कम हैं. और एजुकेशन जिसको ज़्यादा है वो कम मालनूरिश्ड हैं. तो बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं इंडिया में. सो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये बहुत मेजर पॉइंट है. उसके अलावा द रिसेंटली पब्लिश्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे अभी एक पब्लिश हुआ है, गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है. 2016-18 में ये सर्वे हुआ था और 2019 के आसपास गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है. इट हाईलाइट्स दैट 35% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज एंड 22% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 5 to 9 years ऑफ एज. तो बेसिकली ये एक सर्वे हुआ था, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे. तो ये अंडर 5 years ऑफ एज के लिए हुआ था एंड 5 to 9 years ऑफ एज, बेसिकली अप टू 19 years ऑफ एज के बच्चों के ऊपर ये सर्वे हुआ था. तो इस सर्वे में ये आया कि 35% जो चिल्ड्रन थे जो 5 साल से कम थे और 22% जो 5 से 9 साल के बीच में थे, ये स्टंटिंग से सफ़र करते हैं. इसके अलावा एडिशनली ये रिपोर्ट ऑल्सो फाइंड आउट दैट 33% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 एंड 10% ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 5 and 9 वर अंडरवेट के बारे में भी बताया. इवन अमंग एडोलेसेंट आप जानते हैं किशोर अवस्था, बिटवीन 10 to 19 years ऑफ एज 24% वर फाउंड टू बी थिन ऑफ देयर एज, यानी कि वो पतले हैं, अपनी एज से कम है, जो कि एक स्टंटिंग का ही एक पार्ट है. तो दीज स्टैटिस्टिक्स आर फर्दर सपोर्टेड बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2015-16. तो NFHS लास्ट सर्वे जो हुआ था 2015-16 में हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वे. और इस सर्वे में भी ये सर्वे भी किया गया था. इस सर्वे में भी यही कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स आए थे कि बेसिकली ये सर्वे आप जान लीजिए, ये सर्वे जो किया गया था, ये सर्वे किया जाता है अप टू 5 years ऑफ एज के बच्चों में. उसके अलावा एडल्ट्स में किया जाता है मोर देन 19 years ऑफ एज के लिए. तो जो अप टू 5 years ऑफ एज बताया गया है कि 35% बच्चे जो हैं स्टंटेड हैं
up to 5 years of age and 33% of children are underweight. ये जो इस सर्वे ने बताया है that is in consonance or in equivalent or you can say in consonance with what is being published by the National Family Health Survey. तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने क्या बताया था कि अंडरवेट, वेस्टिंग एंड स्टंटिंग. सो अंडरवेट चिल्ड्रन के बारे में बोला था कि 10 साल में केवल 10% डिक्रीज हुए हैं. जो पहले था उससे 10% ही डिक्रीमेंट हुआ है, जो कि काफ़ी कम है. यानी कि जो प्रोग्रेस होना चाहिए वो नहीं हुआ. वेस्टिंग, लो बर्थ वेट विद रिस्पेक्ट टू हाइट. हाइट के हिसाब से आपका वेट काफ़ी कम है. तो वेस्टिंग में भी वेस्टिंग इवन इंक्रीज हो गया कम होने की बजाय. वेट आपका यानी कि कम है पैदा होते टाइम, यानी कि न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता लैक्टेटिंग मदर्स को, वो बढ़ गया. और पंजाब में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, जबकि पंजाब को ज़्यादा प्रोस्पेरस माना जाता है हमारे देश में इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी. बट पंजाब में तो ये 3-4% और बढ़ गया वेस्टिंग. एंड स्टंटिंग, यू नो, द लैक ऑफ हाइट एंड द लैक ऑफ, यू नो, द बॉडी स्ट्रक्चर, इफ इट इज थिक और थिन. सो नॉट मच डिक्रीज, ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, ओनली 2 to 3%, only decreased by 7%. It is not actually okay, it is 7% only decrease. So जितना प्रोग्रेस होना चाहिए 10 साल में वो नहीं हुआ. तो ये वेरियस इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है हमारे देश में कि फूड सिक्योरिटी की स्थिति कितनी खराब है. अब हम पढ़ते हैं कि क्या सॉल्यूशंस हैं इसके फूड सिक्योरिटी के. यूएन्स ज़ीरो हंगर चैलेंज प्रोग्राम. सो ये हंगर चैलेंज प्रोग्राम है यूएन का. इट वर्क्स टू इंश्योर दैट एवरी पर्सन कैन एंजॉय देयर राइट टू एडिक्वेट फूड while empowering women, prioritizing family farming and helping food systems everywhere to become sustainable and resilient. तो ये बेसिकली आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जीरो हंगर चैलेंज प्रोग्राम है ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है ताकि देश दुनिया से हंगर को पूरी तरह मिटाया जा सके. तो सब लोगों के पास राइट टू एडुकेट फूड हो, वुमेन को एम्पावर करना है, फैमिली फार्मिंग यानी कि फार्मिंग जो कि फैमिली फार्मिंग मतलब सब लोग मिलके फार्मिंग करें उसको प्रायोरिटाइज करना है. और जो फूड सिस्टम्स जो हैं हमारे जो वर्ल्ड में हैं वो सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रेजिलिएंट हो, रेजिलिएंट टू क्लाइमेट चेंज, रेजिलिएंट टू रेजिलिएंट हो मतलब ज़्यादा लंबे तक चलें, जो सस्टेनेबल हो, रेजिलिएंट टू different environmental conditions. At a larger scale, initiatives such as the Global Hunger Index focus on food security, nutrition and health indicators, you already know, measuring and tracking hunger at the global, regional and national levels. Along with food modifications, nutrition literacy must be a part of interventions that aspire to improve nutrition statistics. Obviously, मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी ही इंश्योर नहीं करनी है, बट आप उसकी अवेलेबिलिटी और एक्सेस के अलावा आपको यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करनी है. और यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगी जब न्यूट्रिशन लिटरेसी लोगों तक पहुंचेगी, यानी कि अवेयरनेस की स्प्रेड करनी है. तो न्यूट्रिशन लिटरेसी मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द इंटरवेंशंस. गिविंग बेनिफिशियरीज चॉइस, दैट इज बाय ट्रांसफरिंग कैश टू रेसिपेंट्स so they can buy food items of their choice and preferred quality improves the nutritional outcomes of food security schemes. तो ये एक भी बेसिकली इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कैश ट्रांसफ़र करेंगे लोगों के अकाउंट में रेदर देन कि आपको गेहूं चावल लोगों पे थोपना है, अगर आप कैश ट्रांसफ़र कर देंगे मिनिमम, तो लोग अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से जो सामान वो ख़रीदना चाहते हैं ख़रीद लेंगे. इससे डेफिनेटली इसके इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताए थे कि डेफिनेटली वो नॉन फूड आइटम्स में स्पेंड कर सकते हैं. बट एक इसका एडवांटेज ये है कि अगर वो फूड आइटम्स में स्पेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो इंश्योर करेंगे कि गेहूं चावल अगर उनकी अवेलेबिलिटी और एक्सेस उनको मिल गया है, डेफिनेटली बाकी बचा पैसा वो और फूड आइटम्स में खर्च कर सकें, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उनको प्रोटीन्स प्रोवाइड करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा. इसके अलावा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम सच एज पोषण अभियान, जो कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है गवर्नमेंट का, पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत एंड विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी are all designed with great objectives, obviously, but various reports highlight their implementation challenges. There is need to increase ground level monitoring and training under these schemes to ensure in schemes का better implementation ensure करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्कीम्स लॉन्च की है. अब नाउ जो मैंने बात की थी कि फूड सिक्योरिटी तो बहुत हो गई,
न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब देखिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी का एक पार्ट है, बट यहाँ पे हम सेपरेटली थोड़ा सा इसको डील करेंगे, क्योंकि जनरली ये ऐसे में भी पूछा जा सकता है कि ट्रांजिशन फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो डेफिनेटली फूड सिक्योरिटी को आप थोड़ा न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से अलग समझ सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी में आपका आ गया एक्सेस टू फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड एज वेल एज स्टेबिलिटी ऑफ फूड। बट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर करना है कि इन चारों के साथ हमें डाइटरी डाइवर्सिटी भी इंश्योर करना है। वो क्या क्यों ट्रांजिशन करना है और क्या प्रॉब्लम है फूड सिक्योरिटी के साथ, ये हम समझ लेते हैं। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स, जो हमने बात की थी अभी पीछे, इंडिकेटर्स ऑफ चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग वुमेन, दैट इज़ वाई। उसके अलावा it is indeed pointed out that India was also facing the phenomena of nutrition transition, that is the shift in dietary patterns due to economic development, modernization and urbanization. Definitely हमारे dietary pattern में change हो रहा है। पहले हम लोग केवल गेहूँ चावल खाते थे, गाँव में भी या शहरों में भी आप देखिए हर जगह दाल रोटी चावल ही खाया जाता था। अभी डाइटरी पैटर्न्स में चेंज हो रहा है लोगों के। It is indeed paradoxical that we are facing lifestyle disorders including obesity on the one hand and malnutrition on the other. और वो क्यों किया? क्योंकि हम ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स फेस कर रहे हैं अपने देश में। ओबेसिटी मोटापा, माल न्यूट्रिशन नहीं है, प्रोटीन की कमी है, लोगों के कमर में पेन रहता है, लोग जो है ऑब्वियसली हार्ट की एलिमेंट से पीड़ित हैं और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो कि फूड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो डेफिनेटली ये सब डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए हमें न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ज़रूरत है। इसके अलावा इंडिया नीड्स टू शिफ्ट इट्स फोकस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड इरेडिकेट 3 काइंड्स ऑफ हंगर। कौन कौन से हंगर? प्रोटीन हंगर caused by protein deficiency, calorie hunger caused by calories deficiency and hidden hunger caused by deficiency of micronutrients। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हंगर हमारे देश में जो बने हुए हैं इनको रिमूव करना है। A holistic strategy and concerted effort was required to tackle the menace of malnutrition in India। ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन का जो menace है उसको रिमूव करने के लिए न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमें इंश्योर करनी ही पड़ेगी। Promoting a healthy and active lifestyle is as crucial as a balanced and nutritious diet due to the rise of communicable diseases like diabetes बहुत ज़्यादा है हमारे देश में, hypertension, cardiovascular, heart related ailments। It is indeed imperative to shift from food security to nutrition security। That is very well understood I suppose। ये आप पॉइंट्स लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, अपने आंसर्स में। तो हम कंटिन्यू करते हैं। Solutions to food security problem: give small farmers enough incentive to continue in agriculture। आपको स्मॉल फार्मर्स को इंसेंटिव देना होगा कि वो कंटिन्यू करें, जो कि अभी नहीं कर रहे हैं, वो निकल जा रहे हैं। जैसे आप देखिए सारे वर्कर्स हमारे शहरों में आ गए फार्मिंग छोड़ के, तो हमें इंसेंटिव देना पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं कोई बहुत से तो ऐसे हैं जो स्मॉल फार्मिंग जिनके पास है, तो वो एनफ इंसेंटिव देना होगा टू कंटिन्यू इन एग्रीकल्चर। दिस इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर यंग फार्मर्स। दे शुड फील दैट एग्रीकल्चर इज टेक्नोलॉजिकली वायबल और इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल। ठीक है। कम्युनिटी हार्वेस्टिंग को हमें एम्फेसाइज करना है। कम्युनिटी स्टोरेज, कम्युनिटी मार्केटिंग एंड गवर्नमेंट ensuring that fair price should be given to the farmers। The same thing has to be done in agriculture as well। एग्रीकल्चर में करना है आपको ये, कम्युनिटी हार्वेस्टिंग करनी है, कम्युनिटी स्टोरेज करना है, कम्युनिटी मार्केटिंग करनी है, तभी आप एग्रीकल्चर में वो जान फूंक पाएंगे और फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे। इंडिया मस्ट इंश्योर एन ऑपरेशनल फूड सप्लाई चेन, पे स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स इन एडवांस फॉर अनइंटरप्टेड फार्मिंग ऑपरेशंस एंड अवॉइड एनी प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। दैट इज़ सिंपल एज दैट कि प्राइसेस कंट्रोल करने हैं, फार्मिंग ऑपरेशंस को अनइंटरप्टेडली इंश्योर करना है, फूड सप्लाई चेन को ऑपरेशनलाइज करना है, उसको इम्प्रूव करना है। इट इज़ ऑल्सो ए गुड टाइम टू रिविजिट इंडियाज एग्रीकल्चरल रिसर्च पॉलिसीज। वी कैन डेवलप न्यू एंड बेटर वैराइटीज थ्रू जीनोमिक असिस्टेड ब्रीडिंग, बट देयर शुड बी सपोर्टिव पॉलिसीज टू एक्सेलरेट द रिलीज ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज इन द नेशनल सिस्टम। अब बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ जो भी सीड्स यूज़ होती है ना, बहुत ही हाइब्रिड सीड्स यूज़ होती हैं। तो हाइब्रिड सीड्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड क्या है ना,
बहुत ज़्यादा पानी मांगती हैं, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स मांगती हैं, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स प्रोन होती हैं, इंसेक्ट्स प्रोन होती हैं। इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स को बहुत छिड़काव करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस काफ़ी कंड्यूसिव होनी चाहिए। तो ये सब इश्यूज़ हैं। तो इसके लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च पॉलिसीज़ पे हमें एम्फेसाइज करना चाहिए। वो पॉलिसीज शुड बी सपोर्टिव एनफ टू एक्सिलरेट द रिलीज ऑफ न्यू क्रॉप वैराइटीज़ इन दी नेशनल सिस्टम। ऐसी सीड्स हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, ये आगे भी हम बात करेंगे, विच एक्चुअली रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द हाइब्रिड सीड सिस्टम इन आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम। Solutions to food security problem of India continue. Now, sustainable agriculture is fundamental to food security. India has said that at a high level UN session, sustainable agriculture को obviously promote करना है हमें. It's fundamental to food security. India has said at a high level UN session and emphasized the need to bring seed diversity back, जो मैंने अभी बात की आपको, as shipped by farmers from local varieties to genetically uniform high yielding breeds has reduced the ability of crops to survive when faced with challenges. तो हमें हाइब्रिड और जीनोमिक सीड्स का यूज़ ना करके लोकल वैराइटीज़ ऑफ सीड्स को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो चैलेंजेस मैंने अभी बताए हाइब्रिड सीड्स के साथ, वो अगर जो पानी मांगती हैं, जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो इन सीड्स की वजह से हैं। तो इन सीड्स को यूज़ ना करने की बजाय हमें लोकल ब्रीड सिस्टम यानी कि लोकल ब्रीड ऑफ सीड्स यूज़ करनी चाहिए। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें तो इट इज़ बिलीव दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ फंडामेंटल टू फूड सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सीड डाइवर्सिटी। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट जेनेटिक डाइवर्सिटी हैज़ बीन लॉस्ट। हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस्ट हो गई है। क्यों हो गई है? Since 1900, as farmers have shifted from local varieties to genetically uniform high yielding crop breeds. तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म ब्रीड्स को, जेनेटिकली डाइवर्स ब्रीड्स को यूज़ करना है हमें। ये जेनेटिकली यूनिफॉर्म ब्रीड्स पे हमारे फार्मर शिफ्ट हो गए हैं, thereby reducing the ability of crops to survive when faced with challenges. Because the seeds are proprietary, farmers have to pay royalties to use them and purchase new seeds every season, facing rising cost and often increasing debt. Therefore, these seeds needs to be replaced with local sustainable variety of seeds, which is very, very important as far as your food security is concerned. तो आप समझ लीजिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसीज वी नीड टू फॉलो, and that should be the major point in your exam when you're writing the answer of food security, that sustainable agriculture policies should be adopted so as to remove the challenges associated with food security. And in sustainable agriculture you should note it down that local variety of seeds which are genetically diverse seeds should be adopted to use rather than the genetically uniform varieties which which are ridden with various challenges, like they require very high amount of quantity of water, they require high quantity of fertilizers, insecticides, pesticides, and they are very pro climatic changes. Must remember that. Transition from food security to nutrition security की जैसे मैंने बात की, so how can the transition take place? मैंने ये बात की कि होना चाहिए, अब होने के लिए क्या करना चाहिए इसकी बात करते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देना होता है, जो कि देती है गवर्नमेंट अंडर ICDS में गवर्नमेंट ऑलरेडी दे रही है। दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। 0 to 6 years ऑफ एज के चिल्ड्रन को हैंडल किया जाता है इसमें आंगनवाड़ीज़ के द्वारा। इन विलेजेस क्रिएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर शुड बी देयर। विलेजेस में जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर है उसको आपको अपॉइंट करना होगा, उसको आपको लेकर आना पड़ेगा, जो कि ये सारी स्कीम्स को, अभी क्या है डॉक्टर्स ही इन स्कीम्स को सुपरवाइज करते हैं, ये जो भी न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम्स हैं। अब डॉक्टर आर नॉट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, समझ लीजिए आप। तो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत है जो इन स्कीम्स को प्रॉपर्ली सुपरवाइज करें, प्रॉपर्ली इंश्योर करें दैट दे शुड बी प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। देन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, ये जो मैंने आपको बात की थी 2020 में हुआ है। एंथ्रोपोमेट्रिक असेसमेंट हुआ है इसमें। हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड द कैलोरी गैप, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स,
यानी कि हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ इसमें मेजरमेंट ली गई है चिल्ड्रन की, ब्लड सैंपल लिया गया है टू अंडरस्टैंड दी डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ताकि स्कीम्स को प्रॉपरली चेंज किया जा सके या मॉडिफाई किया जा सके एज पर द आउटपुट ऑफ दीज प्रोग्राम ऑफ दीज रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स में निकल के आएगा उसके हिसाब से, जो स्टैटिस्टिक्स होंगे उसके हिसाब से पॉलिसीज़ को मॉडिफाई करके टारगेट के हिसाब से, जो टारगेट होगा उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सो 2%, और पाया गया है कि 2% डिक्रीज़ हुआ है इन स्टंटिंग पर ईयर। इन 2015 में 38% था एंड 2019 में 34 हुआ है, तो 2% अभी डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि कम है, जो बढ़ना चाहिए। तो ये न्यूट्रिशन सर्वे गवर्नमेंट कर रही है ताकि पॉलिसीज़ को और बेटरली फ्रेम किया जा सके और एज पर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड द पर्सन्स आउट देयर and to implement those policies accordingly. And universal vitamin A supplementation, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई है, जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसीज को दूर किया जाता है। पोषण अभियान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दैट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। यू शुड अंडरस्टैंड दिस स्कीम, दैट इज़ द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ambitious program of government of India, and target of reducing malnutrition, that is 2% per year, and reducing anemia, that is 3% per year. You should remember that. तो बेसिकली malnutrition को टारगेट किया गया है और आयरन डेफिशिएंसी को टारगेट किया गया है। इसमें एक पोषण एटलस एक पोषण एटलस इंट्रोड्यूस की गई है। इन अ बिड टू टैकल malnutrition, government is developing an atlas to map the crops and food grains grown in different regions of the country, so that nutritious protein rich food in local areas can be promoted. तो एटलस एक बेसिकली बनाई गई है और वहाँ पे सारे फूड क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन्स को मैप किया गया है एज पर दी लोकल इन डिफरेंट रीजन्स, सो दैट न्यूट्रिशियस प्रोटीन रिच फूड कैन बी प्रमोटेड। तो जहाँ पे डेफिशिएंसी है वहाँ पे भेजेंगे सरप्लस रीजन से, ठीक है ना, और पता चल जाएगा कि कहाँ पे प्रोटीन डेफिशिएंसी है, क्योंकि वहाँ पे अगर क्रॉप्स नहीं है, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए राजस्थान में, जैसे अभी आप समझ लीजिए सरसों की बहुत पैदावार है, मस्टर्ड, तो ऑब्वियसली जहाँ पे मस्टर्ड राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तो जहाँ पे मस्टर्ड की पैदावार कम है तो वहाँ पे मस्टर्ड को लेकर आया जाएगा, ताकि जो मस्टर्ड से लैक ऑफ मस्टर्ड कंजम्पशन से डेफिशिएंसी होगी वो वहाँ पे पूर्ति की जा सके। तो ये पोषण एटलस इसमें इंट्रोड्यूस की गई है। इसके अलावा ये स्कीम क्या कहती है, टू रिमूव कैलोरी डेफिशिएंसी। सो इस स्कीम के अंतर्गत ICDS स्कीम टू रिमूव कैलोरी डेफिशिएंसी, जो ICDS स्कीम है, दैट प्रोवाइड्स अ पैकेज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स, रेफरल सर्विसेज एड्रेसिंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स की ग्रुप्स टू एड्रेस कम्युनिटी malnutrition एंड विच ऑल्सो टैकल कैलोरीफिक डेफिशिएंसी एंड बियॉन्ड। तो ये बहुत सारी सर्विसेज ये देते हैं कि भाई चिल्ड्रन को, बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को खाना देते हैं जो उनको भी लैक्टेटिंग मदर्स की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कैलोरी डेफिशिएंसी को दूर किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड एडोलेसेंट गर्ल्स की। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। द हॉर्टिकल्चर मिशन कैन बी वन ऑफ द वेज टू एड्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इफेक्टिवली। जो हॉर्टिकल्चर मिशन है, हॉर्टिकल्चर आप जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन का जो मिशन है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को अगर इसको बढ़ावा मिलेगा तो हमारे देश में ये डेफिशिएंसी दूर की जा सकती है। सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ पोषण अभियान, दीज ऑल स्कीम्स अभी इसका पार्ट हो गई हैं ये। PDS फूड बास्केट्स should include more dietary diversity featuring local millets such as ragi and jowar which are cheaper than wheat or rice. Okay, local millets रागी ज्वार को इंट्रोड्यूस करना चाहिए PDS के अंदर, जो कि अभी नहीं है, ये बात कर रहे हैं होना चाहिए, ये नहीं, ये है और ये नहीं है। The program should then use the money saved to provide subsidized lentils to beneficiaries. This variety of foods would ensure adequate dietary diversity among recipients. These interventions should accompany nutrition literacy initiatives to ensure uptake and penetration among the target population. So आपको PDS के अंदर इन पल्सेस को, इन लेंटिल्स को लाइक मेज, ज्वार, बाजरा, इन सबको इंट्रोड्यूस करना चाहिए टू रिमूव दी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, दी प्रोटीन डेफिशिएंसी, और उसके अलावा रागी, ज्वार, ये सब को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और न्यूट्रिशन लिटरेसी इनिशिएटिव्स को आपको प्रमोट करना चाहिए।
नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 फर्स्ट टाइम डेडिकेट्स इटसेल्फ टू प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने पहली बार डेडिकेट किया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है। आयुष्मान भारत मिशन आप जानते हैं, फ्री लेवल ऑफ सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं आयुष्मान भारत मिशन में। फर्स्ट लेवल प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, that is the health and wellness center, which are going to be primary health care centers, which will be upgraded in a way that the range of simple medical services available close to the community. तो बेसिकली क्या है ना, जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह एक्ट करेंगे ताकि लोगों को सुविधाएं गांव में ही मिल सकें। इसके अलावा सेकेंड एंड थर्ड यू ऑलरेडी नो दैट सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। फर्स्ट पिलर इज द की टू अचीव माल नूरिशमेंट टारगेट्स। Countries like UK, Sweden, Brazil that pump maximum amount of their budget to primary health care. India skewed towards हमारा बजट skewed towards secondary and tertiary है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा प्राइमरी की तरफ जोर होना चाहिए if we want to address the malnourishment target to remove। अच्छा, ये मैंने पहले भी पॉइंट की जिक्र किया था। Whole gamut of hygiene and health around the system. How clean are our surroundings should be focused upon। तो सराउंडिंग्स को क्लीन करना है, एनवायरमेंटल को क्लीन करना है। जो गवर्नमेंट ने साफ़ सफाई अभियान जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था महात्मा गांधी बर्थडे के टाइम 2 अक्टूबर को सफाई अभियान, तो डेफिनेटली उसके अंदर इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए ये लॉन्च किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो हैज़ टेकन सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स सच एज द रिलीज ऑफ फोर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉर फूड 5 स्टेपल्स बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI टू फाइट micronutrient malnutrition, release of food composition tablets by the National Institute of Nutrition to increase focus on dietary diversity, and now the release of nutrition data to address the issue of malnutrition more holistically। तो आप समझ लीजिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं। जैसे FSSAI ने 5 स्टेपल, जो हमारे जो स्टेपल्स हैं, स्टेपल्स क्या है, हमारे राइस है, वीट है, ज्वार है, बाजरा है, तो जो हमारे 5 स्टेपल्स हैं उसमें क्या और मिला के फोर्टिफिकेशन मतलब क्या सामान और मिलाना चाहिए, यानी कि क्या ऐसा फूड प्रोडक्ट मिलाना चाहिए ताकि वो और न्यूट्रिशियस हो जाए, और उसको मिला के दिया जाना चाहिए कॉमन पब्लिक को PDS के द्वारा। टू फाइट माल न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट माल न्यूट्रिशन, रिलीज ऑफ फूड कंपोजिशन टैबलेट्स बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन टू इंक्रीज फोकस ऑन डाइटरी डाइवर्सिटी। इट इज़ रिलीजिंग द फूड कंपोजिशन टैबलेट्स। दी फूड कंपोजिशन टैबलेट्स मतलब क्या है कि ये बता रहे हैं कि क्या क्या फूड जो फूड है उसके अंदर क्या क्या कैलोरीज हैं, क्या विटामिन, क्या मिनरल्स, और क्या फूड किस टाइप में खाना चाहिए, टू इंक्रीज फोकस ऑन डाइटरी डाइवर्सिटी। एंड नाउ द रिलीज ऑफ न्यूट्रिशन डेटा टू एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन गोज बियॉन्ड जस्ट फूड विद इकोनॉमिक, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन। मैंने आपको बताया कि केवल खाना ही नहीं है, आपको सैनिटेशन भी करना है, इन्वायरमेंट पे भी ध्यान देना है, वाटर भी क्लीन होना चाहिए, जेंडर को भी ध्यान में रखना है, यानी कि जेंडर इट शुड नॉट बी जेंडर बायस्ड, इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। दोनों को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी का गठन करना है। एंड सोशल नॉर्म्स कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर न्यूट्रिशन। अभी हम कंक्लूजन की करेंगे, अभी कंक्लूजन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में। फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। इसके अलावा ये जो किचन्स हैं डिफरेंट PPP रन कम्युनिटी किचन्स, लाइक तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, या पढ़ लीजिए कर्नाटका में अम्मा कैंटीन, आम आदमी कैंटीन। तो ये विच हैव बीन एस्टैब्लिश विद द सेम ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्बैटिंग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन क्राइसिस इन द नेशन, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड एट सब्सिडाइज रेट्स टू दी लोअर। तो ये स्कीम्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए, कम्युनिटी रन PPP रन कम्युनिटी किचन्स को। दो द लेजिस्लेचर इंक्लूडेड ए प्रोविजन फॉर कम्युनिटी किचन्स इन द नेशनल। अब एक आप बात जान लीजिए, बिल के अंदर ये था, NFSA बिल के अंदर, NFS बिल के अंदर, NFSB में, बट NFSA में हटा दिया कम्युनिटी किचन के प्रोविजन। तो ये होना चाहिए था, नहीं था तो अब अमेंडमेंट करके लाना चाहिए। Our nation possesses sufficient resources to introduce the proposed kitchens and emphasize on the transition from right to food, जो कि राइट आर्टिकल 21 का एक पार्ट है एज पर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसकी जगह हमारे देश में राइट टू फूड की जगह टू न्यूट्रिशियस फूड एज ए फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस होना चाहिए अंडर दी आर्टिकल 21 विच इज द नीड ऑफ द आवर। नाउ द कंक्लूजन, कीपिंग इन माइंड द कोरोना वायरस पेंडेमिक, so if we can ensure food availability, food access and food absorption, definitely we should can have a fairly robust system of food and nutrition security. It is also very critical to highlight the linkages between agriculture, जो मैंने अभी बात की कि एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तभी न्यूट्रिशन को बढ़ावा दिया जा सकेगा. तो देयर इज़ अ लिंक बिटवीन एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ. While the PDS may be able to meet calorie needs, the inability to harvest, transport and market perishable fruits and vegetables at remunerative prices during the current crisis has not just deprived farmers of incomes and livelihoods, but consumers too are deprived of micronutrients in their diets. आप जानते हैं कि सड़क पे ही बहुत सारा सब्जी, खाना, फ्रूट्स फेंक दिए गए क्योंकि वो मार्केट में बिक नहीं पाए. या PDS सिस्टम के अंतर्गत क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारी क्रॉप्स का 20 मैंने आपको बताया था अराउंड 25-26 क्रॉप्स का गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है, तो वो नहीं बिक पाए और वो गोदाउन में और फार्मर के खेतों में ही सड़ गए क्योंकि वो नहीं बिक पाए इस टाइम पे. तो इसकी वजह से क्या हुआ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लोगों को नहीं मिल पाए, गरीबों को. सो फार्मर्स को हमें ऑब्वियसली जो मैंने बताया लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इट शुड बी फोकस्ड अपॉन. एग्रीकल्चर को ध्यान देना पड़ेगा. एग्रीकल्चर को ध्यान देना मतलब फार्मर को आपको ध्यान देना पड़ेगा. थ्रू ए कम्बिनेशन ऑफ फार्मर्स कॉर्पोरेशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडिंग होना चाहिए, फेवरेबल पब्लिक पॉलिसीज इन प्रोक्यूरमेंट, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन डील विद द फॉलोआउट्स ऑफ द पेंडेमिक. वी होप दैट दिस पेंडेमिक विल हेल्प रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर फार्मर्स who have done a commendable job both in ensuring food and nutrition security. आप जानते हैं कि इस पेंडेमिक में हमारे फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी. तो हम कमेंडेबल जॉब उन्होंने प्ले किया और हमें इसके लिए उनको बधाई देनी चाहिए. और मैं विद दिस आई विल कंक्लूड माई लेक्चर. मैं बताऊँगा आपको, मैं कहना चाहूँगा कि द लिंकेज बिटवीन द एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मस्ट बी द फोकस एंड द प्रायोरिटी एरिया ऑफ द गवर्नमेंट. कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको फूड अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना है, फूड अवेलेबिलिटी पे भी ध्यान देना है, फूड एक्सेस पे भी ध्यान देना है, फूड यूटिलाइजेशन पे भी और फूड स्टेबलाइजेशन पे भी. स्टेबलाइजेशन तभी हो सकता है जब आप प्रोडक्शन पे भी ध्यान दो और फार्मर्स पे भी ध्यान दो. सो देयर इज़ अ लिंकेज बिटवीन एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड दैट यू मस्ट रिमेंबर. सो विद दिस आई एंड माई लेक्चर एंड I thank you all for hearing me patiently and kindly like my lecture and don't forget to press the notification button if you want to receive such future notifications in future, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.